we are going into the ninth part of our teaching series, which is called the Disciples Discipline. So you may feel, okay, why we are talking about discipline in the time of crisis? Why do we need to focus on discipline in the time of crisis? We need to focus on deliverance. We need to focus on healing. We need to focus on God's hand moving. But you know what? Discipline is not only for good times. Discipline is also for bad times. Amen. And if I have to say, I will say it more boldly that discipline is more important in a time of crisis. Amen. Discipline is more important when things are not going good, because in good times we all are doing good. We can do all the things that are required of us. But when things go shaky, that is where we lose our convictions. We just give up, saying, oh, now everyone is going through a crisis, so it is okay that I lose my discipline. It's okay that I don't pray, or it's okay that I don't come to God. It's okay, God knows, because we are in a crisis. No, thing is, in bad times as well, we have to take certain decisions in our life and certain disciplines in our life that will take us to our answers. Amen. Praise God. Because God is always near. It is we who go far from God. Amen. It is we who go far from God. So that is what we need to focus. So today we are going into the ninth part. नवे भाग में हम जा रहे हैं, और इस शिक्षण का जो शीर्षक है इंग्लिश में है द ट्रूथ ओवर फैक्ट्स. आमेन. सत्य तथ्य के ऊपर सत्य. इंग्लिश में, हिंदी में फैक्ट्स को तथ्य बोलते हैं और ट्रूथ को सत्य बोलते हैं. सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू द टीचिंग द ट्रूथ over facts. All right. So I'm going to start with the definition, or what do you mean by facts? और तथ्य का मतलब क्या है, या सत्य का मतलब क्या है? I just did a search and this is what I got, and I am very much aligning with this, and this is what we are going to focus in the next 40 minutes that we have. I'm going to focus on many Bible verses. I hope I get the time. Facts are not created. तथ्यों का creation नहीं होता. We don't create facts. Facts are simply discovered. Amen. Facts discover होता है, तथ्यों का discover होता है, और तथ्य बदलते रहते हैं. Right? I still remember when coronavirus was beginning to spread in India, there was a big news and campaigns going that only the people who are sick, they need to wear masks, right? People who are well and healthy, they should not wear masks. There were few parliamentarians who actually wore masks a couple of months back, and people were mocking them. News channels were running that what kind of behavior is this? They are causing fear. But now we see that there is a law that is being passed that whoever goes out without mask will be penalized. So what was it? Yes, it was a fact. It was not the truth. It was discovered over the course of time. सबसे पहले 2 महीने पहले ये डिस्कवर हुआ था, ठीक है, मास्क सबको जरूरी नहीं है, जो हेल्दी हैं वो मास्क ना पहने चलेगा. They should just keep physical distancing. But अभी क्या है? Everyone should wear mask. तो क्या बदला? तथ्य उस समय भी था. Facts were real at that time as well. Facts are real at this time as well. But facts were discovered, and it changes over the course of time, and you never know. After 2 months you may hear new facts, and then you will question why I behaved in this manner 2 months back or 4 months back, right? तो तथ्यों के ऊपर यदि हम अपने जीवन को आधारित रखें, तो कई बार हम अपने आप पर हंसेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया. आमेन. आप अभी अपने बचपन में आप फिर के थोड़ा देखें, बचपन की कई चीज जो हम सुनते थे कि हमें नहीं करना है, आज हम बेझिझक वो करते हैं. क्या चेंज हुआ? तथ्य बदल गए. The facts that were there at that time are not relevant at this time. There are new facts that are discovered. लेकिन सत्य को यदि हम देखें, ये completely opposite है. तो यहां पे डेफिनेशन ऐसा बोलता है, the truth is not simply acknowledged, but it is created and is there from the beginning and does not change over the course of time. सत्य
पहले से ही रहता है और वो समय के साथ बदलता नहीं। जो सत्य पहले था वो आज भी वो सत्य है, उसमें कोई बदलावट नहीं होता। और एक चीज है कि जो सत्य है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन आवर फीलिंग्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन आवर इमोशंस, it does not depend on our circumstances or it does not depend on our culture। हमें तथ्य जो है फीलिंग्स में डिपेंड कर सकते हैं। कई बार हमें अच्छा लगने के लिए हम कुछ कुछ बातों में विश्वास करते हैं। हमें कई बार हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए हम कुछ करने लगते हैं। हमें जैसे अभी हम सैनिटाइजर्स का यूज कर रहे हैं, सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हम जरूरत से ज्यादा कुछ चीज करते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमें सुरक्षा महसूस होता है हमें। लेकिन यदि हम सत्य में जाएं तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर लिविंग अकॉर्डिंग टू द फैक्ट, we every 30 minutes we go and sanitize, we go and wash, and we are living because we feel good, right? But truth does not depend on feeling, truth does not depend on any of our emotions। यदि हम आज खुश हैं तो सत्य सत्य है, यदि आज हम बहुत ही दुखी हैं फिर भी सत्य सत्य है। सत्य कभी नहीं बदलता हमें, और सत्य हमारे परिस्थिति के दौरान भी नहीं बदलता। इसीलिए आज मैं बोल सकता हूं कि कोरोना के समय में भी आज भी हमारा प्रभु जिंदा है। हालेलुया। क्योंकि कोरोना है इसका मतलब सत्य बदला नहीं है, सत्य आज भी वही है। हमारा प्रभु जिंदा है, हमारा प्रभु चमत्कार करने के योग्य परमेश्वर है, हमारा प्रभु दयावान परमेश्वर है, हमारा प्रभु प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो पहले से ही था। He is the Alpha and He is the Omega. He is the only truth that we can depend on, and it does not change in culture. Amen. कई फैक्ट्स अलग अलग कल्चर में बदल जाते हैं, जो आज भारत में हमको लगता है हमें करना है। जैसे कि हम कल में एक मीटिंग में अटेंड कर रहा था, तो वहां पे दास ने कहा, यदि आप देखें केरला और तमिलनाडु, हमें केरला के जो औरतें हैं वो ज्यादातर सर में फूल नहीं डालते, सर में फूल लगा के नहीं घूमते, हमें जो अच्छा सुगंधित फूल होता है, क्योंकि केरला में सिर्फ जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं वो ऐसा करते हैं। लेकिन तमिलनाडु में यदि जाएंगे, वहां के हर स्त्रियां हर दिन सवेरे उठ के वो अपने बालों को फूल से सजाती है। तो क्या हुआ, यहां दो तथ्य हैं, एक तथ्य एक स्टेट में लागू है, दूसरा तथ्य दूसरे स्टेट में लागू है। हमें तो तथ्य क्या है, कल्चर के दौरान बदलता है। यदि आज मैं तमिलनाडु में जाऊं और मैं ऐसा दृश्य देखूं तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन मैं केरला में जाऊं और ऐसा दृश्य देखूं तो मैं शायद कुछ सोच पाऊं। हमें तो तथ्य बदलते रहते हैं, सत्य नहीं बदलता। ऑलराइट, तो अभी मैं कुछ कुछ वचनों को पढ़ूंगा ताकि हम इन बातों को समझ पाए। हमें मैं हमेशा कहता हूं, वी कैन फील गुड, वर्शिप मेक्स अस फील गुड, राइट। हमारे जीवन में ब्लेसिंग आएंगे, वी विल फील गुड, हमारे जीवन में चमत्कार होंगे, वी विल फील गुड, बट इट इज द वर्ड ऑफ गॉड दैट विल कीप अस इन द गुडनेस ऑफ गॉड। हमें यदि हम वचन में खड़े रहें, वहां पर जाकर हम स्थिर रह सकते हैं। इसलिए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे सबसे पहले, और ये जो वचन है यूहन्ना 18 का 37 और 38, जॉन चैप्टर 18 वर्स 37 एंड 38, ये यीशु मसीह पिलातुस के सामने जब प्रकट हुआ, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन था। पिछले दिनों इसकी मूवी भी हमने देखी थी, राइट। और उसमें पिलातुस जो यीशु मसीह के साथ जो वार्तालाप करता है, कन्वर्सेशन करता है, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, राइट। बिकॉज पिलातुस जो था वो एक ऐसी जगह से जा रहा था कि वो जानता है कि यीशु मसीह अपराधी नहीं है, लेकिन वो कुछ और भी जानना चाहता था यीशु मसीह से। तो 37वें वचन में ऐसे लिखा है, यू आर ए किंग, said Pilate. Jesus answered, you say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me. Amen. तो यहां पर यीशु मसीह पिलातुस को बोल रहा है कि जो कोई भी सत्य के साइड में है, राइट। तो यहां पे सत्य के साइड के बारे में बताया गया है। सत्य का साइड के बारे में यदि बताया गया है तो सत्य का एक दूसरा साइड भी होगा, है ना। और ये सत्य का दूसरा साइड फैक्ट है, तथ्य है या फिर झूठ है, ना। सत्य यदि एक साइड है तो उसके दूसरे साइड में कुछ और भी बातें हैं, झूठ उसका दूसरा साइड है। तथ्य जो
बदलते रहता है, वो सत्य के दूसरे साइड में है। लेकिन यीशु मसीह यहां पे पिलातुस से कह रहा है कि एवरीवन हु इज ऑन द साइड ऑफ ट्रूथ लिसन्स टू मी। आमेन। परमेश्वर के वचनों को वही सुनते हैं जो सत्य के साइड में होते हैं। तो आज मैं आप सबको मैं इंकरेज करना चाहूंगा, यदि आपको लगता है कि आप सत्य के साइड में हैं, आपको लगता है कि आप जीवित उस सत्य परमेश्वर को जानते हैं, इफ यू नो द ट्रू गॉड, इफ यू आर ऑन हिज साइड, लिसन टू हिज वर्ड। ये सुनकर पिलातुस ने बोला, ओके व्हाट इज ट्रूथ, आई वांट टू नो द ट्रूथ। आमेन। सो ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रूथ, आज हम सबके हृदय में रहना चाहिए। हम समझे कि क्या है ट्रूथ। मैं अगले वचन में जाऊंगा। हमारे जीवन में कई तथ्य रहते हैं। ये जो वचन है लूक का रचित सुसमाचार 13 का 10 से लेकर 13 तक, लूक चैप्टर 13 वर्स 10 to 30। यहां पर जीसस, ही इज ए क्रिपल्ड वुमन ऑन द सैबथ डे। आमेन। सैबथ के दिन में यीशु मसीह सिनेगोग में पढ़ा रहा था, मंदिर में पढ़ा रहा था, और वहां पर एक स्त्री थी। शी वॉज क्रिपल्ड बाय ए स्पिरिट फॉर 18 years। 18 साल तक वो क्रिपल्ड थी। क्रिपल्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई यदि अनम्यूट करके मेरे को पढ़ के सुनाएगा। लूक 13 का 10 और 11। सब्त के दिन पास्टर आपको सुनाई दे रहा है ना? यस, सुनाई दे रहा है शिशु, थैंक यू। ओके। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने इसे बस वो कुबड़ी हो गई थी, राइट? क्रिपल्ड, कुबड़ी, और सीधी नहीं हो पा रही थी। दैट मींस वो झुकी हुई थी। जब वो चलती थी तो झुक के चलती थी। शी वाज क्रिपल्ड एंड दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ अ स्पिरिट and it was impacting her for 18 years। Amen। This was the fact in her life। पिछले 18 साल तक ये तथ्य था उसके जीवन में कि वो सीधी नहीं हो पा रही थी, वो कुबड़ी हुई थी। Amen। She was crippled and she could not straighten herself up। 12वें आयत में यीशु ने उसे देखा। When Jesus saw her, he called her forward and said to her, woman, you are set free from your infirmity। Then he put his hands on her and immediately she straightened up and praised God। Amen। 18 साल तक एक तथ्य था जो हमेशा उस स्त्री के जीवन में थी, और जो कोई भी उस स्त्री को देखते थे, they used to witness this fact that this woman was crippled। Amen। She could not straighten herself up। वो सीधी खड़े नहीं हो सकती थी। Amen। ये फैक्ट था। लेकिन यीशु मसीह ने उस तथ्य को देखा। आमेन। और उसने उस स्त्री को उस तथ्य में रहकर बुलाया, और जब वो स्त्री यीशु मसीह के सामने चल के जा रही थी तो मुझे पूरा यकीन है वो झुकते हुए यीशु के सामने गई। द फैक्ट अप्रोच्ड जीसस। हालेलुया। बट व्हाट डिड जीसस say to her? Jesus said, women, you are set free from your infirmity। Amen। जहां पर फैक्ट था 18 साल तक वो कुबड़ी एक महिला थी, सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु मसीह ने उसे देख के बोला, यू आर सेट फ्री फ्रॉम योर इन्फर्मिटी। जहां पर यीशु मसीह का सत्य वचन आता है, जहां पर सत्य आता है, वहां पे तथ्य बदल जाता है। आमेन, हालेलुया। वेयर द वर्ड ऑफ गॉड कम्स इन, द फैक्ट चेंजेस। व्हाट हैपेंड? यीशु मसीह ने हाथ भी रखा। हाथ क्या दिखाता है? परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, परमेश्वर के उस टच को दिखाता है। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है, वहां पर सारा फैक्ट बदल जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और वो स्त्री चंगी हो गई, सीधी हो गई। 18 साल तक जो सीधी नहीं हो पा रही थी, यीशु मसीह के मुख से निकले हुए उस सत्य वचन के कारण, उसके हाथ रखने के कारण वो सीधी हो गई और वो परमेश्वर की आराधना करने लगी। हालेलुया। क्या हम अपने हाथ उठा परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? आमेन, हालेलुया। मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा, वचन बहुत जरूरी है। अगला यूहन्ना 8 का 44। यहां पर यीशु मसीह यहूदियों को कह रहा है, यू बिलोंग टू योर फादर द डेविल and you want to carry out your father's desires। he was a murderer from the beginning, not holding to the truth। यहां पर यीशु मसीह शैतान के उस विषय में कुछ बता रहा है। he is talking about the enemy।
आमेन, द डेविल। और उसके कुछ चीजों को वो बता रहा है कि वो पहले से ही क्या था, हत्यारा था, ही वॉज अ मर्डरर, आमेन, आमेन, एंड ही डिड नॉट होल्ड टू द ट्रूथ। दैट मीन्स डेविल ट्रूथ के सामने कभी नहीं रहता, उसके हाथ में ट्रूथ नहीं है, उसके आसपास ट्रूथ नहीं है, उसके मुख से निकलने वाले वचनों में ट्रूथ नहीं है, सत्य नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ही सत्य नहीं है। तो एक चीज हमको समझना है, जो शैतान है उसमें बिल्कुल सच नहीं है, हमें। तो जो सच के साइड में है उसको शैतान के कुछ भी ध्वनि को सुनने की कोई जरूरत नहीं है, हमें। जो भी डर की बातें आती है, झूठ की बातें आती हैं, जो सत्य के साइड में है, दे शुड नॉट अलाइन विद इट, आमेन। एंड दैट इज व्हाट अ डिसाइपल ऑफ जीसस शुड डू एट दिस टाइम एज वेल। क्योंकि जब शैतान बोलता है तो वो झूठ ही बोलता है, और यहां पर वचन में हम देखते हैं कि वो झूठ का बाप है, आमेन। जो यदि हम तथ्य को देखें, फैक्ट्स को देखें और ट्रूथ को देखें, आमेन, फैक्ट्स हमने देखा कि शायद फैक्ट्स झूठ नहीं होगा लेकिन वो सच भी नहीं होता, आमेन, क्योंकि फैक्ट्स चेंज होते रहता है, सत्य कभी भी चेंज नहीं होता, हालेलुया। जब हम सत्य को पकड़े रहते हैं हम स्थिर रहते हैं, यदि हम फैक्ट्स को ज्यादा पकड़े रहें तो हम डगमगाएंगे, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो सत्य झूठ और तथ्य के ऑपोजिट में है, ये हम सब आज जाने। हम अगले वचन में जाएंगे, प्रेज गॉड। यूहन्ना 14:6, ये हम सबको पता है, बिना देखे हम सब बोल सकते हैं। यहां पर यीशु मसीह ने कहा, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। यहां पर यीशु मसीह अपने आप का परिचय दे रहा है, क्या बोल रहा है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। When we are hearing from this teaching the truth over facts, तथ्य के ऊपर सत्य, ये सत्य क्या है हम सब जाने, ये सत्य यीशु मसीह है, हालेलुया। जो आदि में था, जो अंत में भी रहेगा। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। हु वाज दिस वर्ड? जीसस वाज दिस वर्ड। एंड यीशु मसीह अपना परिचय दे रहा है कि मैं ही मार्ग हूं और मैं ही सत्य हूं, हालेलुया, मैं ही जीवन हूं। जब सत्य आता है वहां पर मार्ग खुलते हैं, हालेलुया, वहां पर हमें जीवन मिलता है, हमारी मरी हुई अवस्था में हमें एक नया जीवन मिलता है, हमारी रोगों में हमें चंगाई मिलती है, when we hold on to the truth. And who is the truth? Jesus is the truth, हालेलुया। But many times what we do, हम क्या करते हैं, हम तथ्यों में ज्यादा पकड़ते हैं, फैक्ट्स क्या कहते हैं, आमेन, मेडिकल साइंस क्या कहता है, डॉक्टर का रिपोर्ट क्या कहता है, दुनिया का जो 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 ज्ञान है, विज्ञान है, वो क्या कहता है। हम सत्य को नहीं पकड़ते, हम तथ्यों को पकड़ लेते हैं। लेकिन आज मैं आप सबको इंकरेज करना चाहूंगा कि हम सत्य को पकड़े, और ये सत्य कौन है? यीशु मसीह वो सत्य है, हालेलुया। अगला, यहाँ यीशु मसीह कहता है, इफ यू होल्ड टू माई टीचिंग, यूहन्ना 8:31 और 32 में ये चेलों को लिए बता रहा है, आमेन। टू ऑल द ज्यूज हु हैड बिलीव्ड हिम, जीसस सेड, इफ यू होल्ड टू माई टीचिंग। यीशु कौन है? सत्य है। सत्य यदि कुछ पढ़ाता है तो जो उसका शिक्षण है वो भी सत्य होगा, वो भी सच होगा। और यदि हम यीशु मसीह के शिक्षण को, यीशु मसीह के उन वचनों को हम यदि पकड़े रहें, हम असली में उसके चेले हैं। और जब हम ऐसा करेंगे, देन यू विल नो द ट्रूथ, आमेन। सत्य को पकड़ना पहले जरूरी है। हम क्या करते हैं, बिना पकड़े उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चीज, होल्ड ऑन टू हिज टीचिंग, आमेन। हमें उसे पकड़े रहना है, उसके बाद हम सत्य को जानेंगे, आमेन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है एक चेले को? सत्य को पकड़ना, आमेन, वचनों को पकड़ना, हालेलुया। आज मई 3, 2020 है। मुझे नहीं पता था, मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया है। आज से 2 साल पहले आज ही के दिन मैंने रेसिग्नेशन दिया था, प्रेज गॉड, आमेन। और जो मैंने रेसिग्नेशन दिया था, बस एक ही वचन को पकड़ के, और आज मैं उसे पकड़ा हुआ हूं, हालेलुया। what was the fact? Fact was, this was not a good decision. Fact was, this is not a right thing to do at this point, amen. But what was the truth? Truth was the word of God, hallelujah. आज भी मैं उस वचनों को पकड़ा हूं, praise God. जब हम वचन को पकड़ते हैं तब हम सत्य को जानते हैं, और उसके बाद जो सत्य को हमने जाना है वो सत्य हमें आजाद करता है। ये 3 जो प्रोसेस है हम भूले नहीं। पहले पकड़ना है,
फिर जानना है, और उसके बाद जो सत्य को हमने जाना है वो हमें आजाद करता है। हालेलुया। क्या हम हाथों को उठा के धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया। मैं कुछ वचनों को पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। अगला, पौलुस तिमोथी को जो लेटर में लिखा, दूसरा तिमोथी 16 से लेकर 18 तक। आमेन। हिंदी में सिस्टर मेरी प्लीज ये पढ़े, इसके बाद मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। दूसरा तिमोथी 2:16 से 18। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम लग रहा है सिस्टर मेरी, आप पढ़ सकते हैं? यस पास्टर। यस। 2 तिमोथी 2:16 से लेकर 18। यस। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति से बढ़ते जाएंगे और उसका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हिमेनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं, जो यह कहकर कि पुण्य स्थान हो चुका है, सत्य को भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। आमेन, आमेन। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। अवॉइड गॉडलेस चैटर। आमेन। हम सब चैट करते हैं, राइट? लेकिन हम जो यीशु मसीह के चेले हैं, वी शुड एट ऑल टाइम्स अवॉइड गॉडलेस चैटर। अब ये गॉडलेस चैटर क्या है? गॉडलेस चैटर मतलब गॉड इज ट्रूथ। वो सारी चैट जो ट्रूथ नहीं है, हमें अपने जीवन से हटाना है। आमेन। क्योंकि यदि हम उसमें बने रहे, हम परमेश्वर से दूर चले जाते रहेंगे। तो हम कई बार फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। आमेन। मेरा बस यही आपको एक एग्जोटेशन है कि आपको यदि लग रहा है कि जो फैक्ट्स है परमेश्वर के सत्य वचन, परमेश्वर के सत्य वचन से हमें दूर ले जाता है, तो हम उन वचनों को, हम उस असत्य और उस तथ्यों को ज्यादा ध्यान ना दे, हम उस पर ज्यादा ध्यान ना दे। वी शुड अवॉइड दैट काइंड ऑफ चैट। क्यों हमें अवॉइड करना है? क्योंकि ऐसी जो टीचिंग्स है 17 में, वो सड़े घास की तरह फैलती है। और यहां पर 2 लोगों का उसने नाम लिखा है जो गलत टीचिंग्स दे रहे थे, जो ज्यादा तथ्यों पर बात कर रहे थे, क्योंकि वो सत्य से दूर चले गए थे। और यीशु वहां पे पौलुस कहता है 18 में, they say that the resurrection has already taken place and they destroy the faith of some. Amen. वो एक्चुअली कुछ फैक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे थे कि देखो रिजरेक्शन हो गया है। फैक्ट था, हाँ रिजरेक्शन हो गया था, फैक्ट था, लेकिन वो फैक्ट्स को पेश करके लोगों को सत्य से भटका रहे थे और उनके विश्वास को क्या कर रहे थे? नाश कर रहे थे। तो यदि हम सत्य के अलावा किसी भी झूठ में या फिर तथ्यों में ज्यादा ध्यान दे, सत्य में ज्यादा ध्यान नहीं दे, तो वो हमें हमारे विश्वास से दूर ले जाएगा। इसीलिए हम सब सावधान रहें कि हम किस तरह के कन्वर्सेशंस में पढ़ते हैं। यदि आपको लगता है, पवित्र आत्मा आपको बोलता है कि ये देखो ये सत्य की बातें नहीं है, आप तुरंत वहां से हट जाएं। आमेन। आमेन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कंप्लीटली लोगों को इग्नोर करें, लेकिन देयर आर वेज टू अवॉइड इट। आमेन। यू कैन बी साइलेंट और यू कैन गिव अ काउंसल। आप एडवाइस दे सकते हैं। यदि एडवाइस ले नहीं रहे हैं तो आप चुपचाप वहां से निकल ले। आमेन। कई बार हम क्या कहते हैं? हम फैक्ट्स को डिपेंड करते हैं फैक्ट्स के द्वारा। फैक्ट्स को फैक्ट्स के द्वारा डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स हमेशा चेंज होता है। आज जो फैक्ट के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं, जो तथ्य के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं, वो शायद 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो बदल जाएगा। फिर आप क्या करोगे? इसीलिए सत्य को पकड़े रहना जरूरी है, क्योंकि सत्य कभी नहीं बदलता। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन ही सत्य है, यीशु मसीह ही सत्य है। सो लेट अस होल्ड ऑन टू हिज टीचिंग। आमेन। हम अगले वचन में जाएंगे, ये हमें उत्पत्ति के पुस्तक में ले जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। आमेन। ध्यान से पढ़िए कि ये सत्य और तथ्य क्या है। आमेन। हम सब उत्पत्ति 3 का 1 से लेकर 6 हम सब जानते हैं किस प्रकार शैतान ने सर्प के भेष में आकर उसने स्त्री को फुसलाया और उसे पाप में गिराया। 3 का 1 में हम क्या पढ़ते हैं? उसने स्त्री से सवाल किया, डिड गॉड रियली से यू मस्ट नॉट ईट फ्रॉम एनी ट्री इन द गार्डन? Devil was presenting a fact. He was questioning a fact. Did God really say?
Amen. He was having a conversation on a fact, not the truth. Amen. क्योंकि वो जानना चाहता था कि हव्वा ने क्या सुना है। और हम देखते हैं दूसरे आयत में हव्वा कहती है हाँ हम सारे वृक्षों के फलों को खा सकते हैं, लेकिन तीसरे आयत में कि you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden and you must not touch it or you will die. Right? हव्वा ने परमेश्वर के वचन को बोला कि you must not eat from the tree that is in the middle of the garden, लेकिन she added a fact or she added something that God never said. और क्या था वो कि you must not touch it or you will die. हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला था। आमीन। परमेश्वर ने सिर्फ बोला था कि तुम इस फल से खाओगे तभी तुम मर जाओगे। आमीन। This was the truth. लेकिन the devil came and started to question this. Amen. He presented a fact. Amen. और उसने कहा कि नहीं नहीं तुम मरोगे नहीं। यदि हम देखें, devil was presenting a fact. क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा था वो शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं कह रहा था, वो आत्मिक मृत्यु के बारे में कह रहा था। तो devil knew this and devil presented a fact saying no you will not surely die. He was talking about the physical death. क्या वो फैक्ट सही था? सही था, क्योंकि जो वो फल से खाएंगे तो फिजिकली नहीं मरने वाले थे और डेविल ने वही प्रेजेंट किया। आमीन। एंड उसने और एक चीज प्रेजेंट किया कि फॉर गॉड नोज दैट व्हेन यू ईट फ्रॉम इट योर आईज विल बी ओपन एंड यू विल बी लाइक गॉड नोइंग गुड एंड इविल। क्या ये सही था? सही था, क्योंकि वो जो ट्री था was the tree of the knowledge of good and evil. तो जो फल उसमें से खाएंगे हमें उसका चीज मिलेगा। We will start to know the good and evil. So he presented the fact. But what was the truth? The truth was God's command that you should not eat. Amen. लेकिन devil very cleverly he presented the fact. Amen. Hallelujah. And हव्वा उस फैक्ट को पकड़ ली। हालेलुया। और वो फिर जाके वो पाप में गिरी। आमीन। जेनेसिस 2:9 में 9 जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 9 में वहां पे ऐसे लिखा है इन द मिडिल ऑफ द गार्डन वेयर द ट्री ऑफ लाइफ एंड द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। वो बागीचे के बीच में दो तरह के वृक्षों के बारे में कहा गया। एक है जीवन का वृक्ष और एक है नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, सही और बुरे की ज्ञान वाला वृक्ष। आमीन। दो वृक्ष उस बागीचे के बीच में थे। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था? सिर्फ तुम इस वृक्ष के फल से नहीं खाना। That is the tree of the knowledge of good and evil. That means they had the freedom to eat from the tree of life. Hallelujah. Amen. आज 21वें सदी में कुछ नहीं बदला। यदि हम देखें, tree of the knowledge of good and evil is the facts that we see all around us, that what science presents us. Yes, it is good. It is certainly good. But there is also an evil part to it. There are so many things that goes around us. लेकिन आज हम क्या करते हैं? हमारे पास भी ऑप्शन है। We can eat from the tree of life or we can eat of the tree of the knowledge of good and evil. सत्य है, तथ्य है, हम किसके फल को खाएंगे? आमीन। क्या हम उस तथ्य के फलों को खाएंगे जो अच्छा दिखता है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हम सत्य को छोड़ दे रहे हैं? Are we not enjoying the word of God or are we not accepting the word of God or are we not consuming the word of God? क्या हम 24 घंटे तथ्यों के पीछे गूगल में सर्च किए जा रहे हैं कि क्या है फैक्ट्स, क्या है सिम्टम्स, कैसा होगा, मुझे क्या करना है, rather than searching from the word of God which is the tree of life. आदम और हव्वा ने भी ऐसा किया। They had the tree of life, but the devil presented the fact and led them to the tree of knowledge of good and evil. And they ate of the fruit, and we all know what happened. They died spiritually. Amen. They did not die physically. Facts was correct. But what happened? They moved away from the presence of God. Hallelujah. परमेश्वर ने उन्हें अपने सानिध्य से निकाल दिया. And they were in a fearful state. You know, facts will always lead us to fear, but truth will set us free. Hallelujah. Amen. तथ्य हमेशा हमें डर की ओर ले जाएंगे, लेकिन सत्य हमें आजादी की ओर ले जाते हैं। आज हमारे पास भी ये ऑप्शंस है और ये सवाल हम अपने आप से पूछे। हालेलुया। और एक घटना नए नियम से यीशु मसीह ने आंधी को शांत किया। आमीन। हम सब उस स्टेटमेंट को जानते हैं, लेट अस गो ओवर टू द अदर साइड। मार्क 4 का
35 से 41, मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 to 41। यीशु ने कहा लेट अस गो ओवर टू द अदर साइड, और वो बोट में बैठ गया और यीशु मसीह जाके सो गया, राइट। सत्य क्या था? लेट अस गो ओवर टू द अदर साइड। क्यों सत्य था? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह सत्य है। सत्य के मुंह से निकलने वाला हर वचन सत्य होगा। तो सत्य क्या था? दैट वी आर गोइंग टू द अदर साइड, आमेन, दैट वाज द ट्रूथ। और यीशु मसीह जाके सो गया। अभी फैक्ट्स क्या आ रहे हैं? तथ्य क्या आ रहे हैं? नहीं, इट इज नॉट इजी। देयर इज अ स्टॉर्म एंड a boat is shaking. There is a furious wave coming over the boat. Disciples looked to the fact. तथ्यों को देखने लगे और वो भयभीत हो गए। और फिर वो यीशु मसीह को उठा के बोल रहे हैं, रब्बी, टीचर, गुरु, डोंट यू केयर इफ वी ड्राउन? हालेलुया, आमीन। अब देखो, सत्य क्या था कि जो भी हो हम उस साइड जाने वाले हैं। यीशु मसीह को जाने के लिए बोट की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। यदि यीशु मसीह ने कहा, बोट सिर्फ एक माध्यम था। यदि बोट डूब जाएगा, यीशु मसीह ने यदि ऐसा कहा है तो वो होगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह सो गया। लेकिन शिष्यों ने सत्य में ध्यान नहीं दिया, तथ्यों में ध्यान दिया, और यीशु मसीह को वो जगा रहे हैं। आज क्या हम भी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर क्या तू हमें भूल गया है? क्या तू हमें इस अवसर में छोड़ देगा? आमीन। क्या हम तथ्यों को देखकर सत्य को सवाल कर रहे हैं? अब देखिए सत्य ने क्या कहा। सत्य, यीशु मसीह नींद से उठ गया एंड ही सेड क्वाइट, बी स्टिल। किसको कहा? फैक्ट्स को कहा। हालेलुया। जो आंधी वहां चल रही थी उसे देख के कहा, बी क्वाइट, बी स्टिल। हालेलुया। और उसी समय जितने भी फैक्ट्स थे जो चेलों को डरा रहे थे, वो वहां से एकदम शांत हो गए और सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। और एकदम शांति आ गई। और उसके बाद उसने उसके चेलों को कहा, क्यों तुम इतने भयभीत हो? Why you are looking towards the facts and getting afraid? Look towards the truth. What was the truth? Let us go to the other side. फिर उसने सवाल किया, Do you still have no faith? Amen. मैंने पहले कहा था, जब हम फैक्ट्स पे विश्वास, फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, सत्य पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, सत्य को नहीं पकड़ते, तो हम विश्वास से दूर चले जाते हैं। यही इन चेलों के साथ भी हुआ। उन्हें विश्वास नहीं था क्योंकि वो सत्य को भूल गए, तथ्यों को पकड़ने लगे। आमीन। हम अगले वचन में जाएंगे। हम सबको पता है यीशु मसीह पानी में चला। आमीन। यीशु मसीह पानी में चल के आ रहा है। पतरस ने देखा, पतरस ने बोला मुझे भी बुला। यीशु मसीह ने बुलाया, पतरस पानी में उतरा, चलने लगा। अभी क्या हुआ? पानी में चलना आम बात नहीं है, लेकिन पतरस ने सत्य को पकड़ा और सत्य में वो पहला कुछ कदम चला। लेकिन फिर वो तथ्यों को देखने लगा, फैक्ट्स को देखने लगा। फैक्ट्स क्या है? आंधी आ रही है, विंड है ना, बहुत सारा उतार चढ़ाव है, और फिर वो डूबने लगा। When we look into the facts, forgetting the truth, that is where we begin to sink down. Hallelujah, praise God। ये हम सब ध्यान रखें। अगला, ये हम सब जानते हैं, जायरस की कहानी। हालेलुया। जायरस जो एक सिनेगोग का लीडर था, वो यीशु मसीह के सामने आता है। मार्क 5 का 22 से लेकर 24 में हम पढ़ते हैं कि वो यीशु मसीह के चरणों में गिर जाता है और बोलता है कि मेरी जो छोटी बेटी है, लिटिल डॉटर, वो मर रही है। आमीन। मेरे घर में आ मेरे प्रभु और उसके ऊपर हाथ रख ताकि वो चंगी हो जाए और वो जीने लगे। आमीन। ये सुनकर 24 में क्या हुआ? जीसस वेंट विथ हिम। हालेलुया। क्योंकि जायरस ने, अभी यीशु ने यहां पर कुछ नहीं बोला, जायरस ने बोला। जायरस ने क्या बोला? एक विश्वास का वचन बोला। उसका क्या विश्वास था? कि यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ रखेगा और वो चंगी हो जाएगी। ये इसका विश्वास था और उस विश्वास के वचन को यीशु मसीह को बोला। एंड जीसस अलाइन्ड विद दैट वर्ड ऑफ फेथ। आमीन। एंड जीसस वॉक्ड टुवर्ड्स द हाउस ऑफ जायरस। आमीन। सत्य यह था कि यीशु मसीह जाएगा, हाथ रखेगा और वो जी उठेगी। लेकिन मार्क 5 के 35 में देखो, फैक्ट्स आ रहा है। क्या है फैक्ट? तथ्य क्या है? कि जब यीशु मसीह वहां पे बात कर रहा था, कुछ लोग जायरस के घर से आते हैं और कहते हैं योर डॉटर इज डेड। क्या यह सही था? सही था। ये फैक्ट था, लेकिन ये सत्य नहीं था। सत्य क्या है? यीशु मसीह जाएगा, उसके ऊपर हाथ रखेगा और वो चंगी हो जाएगी। हालेलुया। क्या फैक्ट ने यीशु मसीह के जर्नी को रोका? यीशु मसीह कहता है डोंट बी अफ्रेड। आज यीशु मसीह हमको कह रहा है, दुनिया के फैक्ट्स को देख के आप डरो मत। आमीन। जस्ट बिलीव।
Believe in what? Believe in the truth, not believe in just facts. Don't forget the truth. Truth is stable. Truth is from the beginning, and truth will set us free. Hold on to the truth. Believe in the truth. और हम देखते हैं 41वें आयत में, हालेलुया, फैक्ट्स सब रो रहे हैं. क्यों रो रहे हैं? जायरस की बेटी मर गई. क्या सही है? सही है. रोना अच्छी बात है, अच्छी बात है. नहीं रोएंगे क्या? हंस सकते हैं? नहीं हंस सकते. मरे हुए के घर में हम हंस नहीं सकते. हम हमेशा फैक्ट्स के कारण, फैक्ट्स में हम अपना बिहेवियर लाते हैं. लेकिन सत्य क्या है? यीशु मसीह आएगा, हालेलुया. यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ रखेगा. और यीशु मसीह ने क्या किया? बाकी सब लोगों को बाहर निकाला और यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखा और कहा, तलीता कूम, दैट मींस लिटिल गर्ल गेट अप, हालेलुया, आमेन. तू जो फैक्ट्स में जकड़ी हुई है, सत्य आ गया है और सत्य कह रहा है, गेट आउट ऑफ योर फैक्ट्स एंड स्टार्ट लिविंग इन द ट्रूथ, हालेलुया. और ऐसा ही हुआ. प्रेज गॉड, हालेलुया. परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है. प्रेज गॉड. आप बोलेंगे नए नियम की बात हो गई. पुराना नियम में क्या हुआ? हम सब यूसुफ की कहानी जानते हैं, हालेलुया. यूसुफ अपने पिता का 11वां बेटा था, हालेलुया. वो पिता का सबसे फेवरेट था. पिता ने उसको बहुत बहुरंगीन वस्त्र गिफ्ट में दिया, आमेन. सब जो भाई थे उससे नफरत करते थे. एक दिन पिता ने यूसुफ को खाना लेकर किसके पास भेजा? अपने भाइयों के पास भेजा. भाइयों ने दूर से देखा और उसे मारने का प्लान बनाया. जब वो मारने वाले थे तो रूबन जो था, रूबन ने उससे कहा, नहीं मत मारो, हम इसे इस कुएं में गिरा देंगे, हालेलुया. और हम बाद में देखते हैं जेनेसिस 37 का 29 से लेकर 36 में कुछ मिद्यानी लोग आए और रूबन के जाने बिना उन भाइयों ने यूसुफ को किसके हाथ में भेज दिया? मिद्यानियों के हाथ में भेज दिया. और अभी रूबन ने जब देखा, अरे यहां पे लड़का नहीं है, अब मैं क्या करूं, तब उन्होंने एक चीज किया. यूसुफ का जो कपड़ा था बहुरंगीन, उसमें उन्होंने क्या किया? एक बकरी के खून को डाला और उसमें मिलाया और उस तथ्य को लेकर किसके पास गए? वो याकूब के पास गए, आमेन. And when Jacob saw that, what did Jacob saw? Jacob saw a fact. What was the fact? Joseph was not there. Joseph नहीं है घर में. Another fact, उसका कपड़ा मिला है, उसमें क्या है? खून है. जब हम फैक्ट को देखते हैं, हम कुछ चीजों में बिलीव करने लगते हैं जो सत्य नहीं है. अब याकूब ने क्या बिलीव किया? कि हाँ, मेरे बेटे को कोई वाइल्ड एनिमल ने खा लिया होगा, आमेन. उसने कहा, 33 में देखते हैं, उसने कहा, हाँ ये मेरे बेटे का कपड़ा है, कुछ जानवरों ने इसे खा लिया होगा. शायद यूसुफ का अभी जो बॉडी है, इट इज टोर्न इनटू पीसेस, कहीं पड़ा होगा. देखो अभी क्या हुआ. सत्य ये था क्या? नहीं. लेकिन फैक्ट्स को देखकर याकूब कुछ चीजों को सोच रहा है, जेकब कुछ चीजों को बोल रहा है. ही इज ट्राइंग टू गेट इनटू कंक्लूजन्स, हालेलुया, कि मेरा बेटा मर गया, आमेन. लेकिन सत्य क्या था? यूसुफ अभी इजिप्ट में गया, हालेलुया. 36वें आयत में इजिप्ट में गया और वो पोतीफर के घर में है, हालेलुया. कई बार हम भी अपने जीवन में फैक्ट्स को देखकर कुछ कंक्लूजन्स में आ जाते हैं. आज परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, तथ्यों को देखकर कंक्लूड मत करो, लेकिन जो सत्य वचन में देखकर, उस इटर्निटी की ओर देखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ. बिकॉज योर स्टोरी इज नॉट ओवर, हालेलुया. बिकॉज योर स्टोरी इज इन बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड विच इज ट्रूथ, हालेलुया. आपके जीवन में जो भी प्रोमिसेस है, आप उसे छोड़े नहीं. फैक्ट्स को देख के प्रॉमिस को ना भूल जाए, लेकिन प्रोमिसेस को देख के फैक्ट्स को आप एक्नॉलेज करें. एक्नॉलेज, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्नॉलेज मत करो, बट एक्नॉलेज करो, बट डोंट बिलीव इन द फैक्ट्स, बिलीव इन द ट्रूथ, हालेलुया. हम अगले वचन में कुछ चीजों को मैं बताना चाहूंगा जब मैं एंड कर रहा हूं, हालेलुया. फैक्ट्स कैन मेस यू अप एंड सेंड योर माइंड टम्बलिंग इनटू डार्क चेजम्स ऑफ फियर, आमेन. ये मैंने गूगल से निकाला है. ये चीज ये बहुत ही सही है, आमेन. कई बार फैक्ट्स हमारे जीवन को कंप्लीटली मेसअप कर देता है, आमेन. क्या है फैक्ट? इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रहा है, सब लोग नौकरी खो रहे हैं. ये सब यदि हम इस पर ज्यादा ध्यान दें तो हमारा जीवन तो एकदम नरक के समान होगा. हर दिन हम उठेंगे रात को 12-2 बजे, हमारा नींद उड़ जाएगा. क्यों? अगले दिन शायद मेरा बॉस मुझे फोन करके बोलेगा कि ऑफिस मत आओ और लॉग इन मत करो, राइट. अभी तो ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं, घर में.
शायद एक मेल आएगा कि यू आर लेड ऑफ. If we focus on the facts, we can mess up. Amen. And we will go into fear. अभी यहाँ कुछ चीज क्या है, हम कभी कभी सोचते हैं हाँ मेरा बैंक अकाउंट एम्प्टी है. फैक्ट है, शायद आज मेरा बैंक अकाउंट एम्प्टी हो गया, जीरो हो गया, लेकिन सत्य क्या है, नहीं नहीं अभी तो सैलरी नहीं आया, कल तुम्हें मिलेगा, कल तुम्हारा बैंक अकाउंट एम्प्टी नहीं होगा. आमेन. और कल कोई जिसने आपसे पैसे लिए थे वो शायद आपको रिटर्न करे, ये भी सत्य हो सकता है. लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, फैक्ट्स में बैठकर हम अपने आप को एकदम नीचे गिरा देते हैं. दूसरा, आई हैव कोविड-19 लाइक सिम्टम्स. हाँ मेरे गले में दर्द है, राइट, मुझे कोल्ड है, एंड देन वी स्टार्ट टू बिलीव, oh no I have COVID-19. But what may be the truth? You just have a cold. Amen. Why lose your peace looking at the facts or the symptoms rather than holding on to the word of God? Amen. That is very important. Third, my husband, wife, friends, parents is not answering my call. बहुत बार होता है, हम कॉल कर रहे हैं, उठा रहा नहीं है, फिर हम कंक्लूड करने लगते हैं, हाँ फैक्ट है उठा रहे नहीं है, हम कंक्लूड करने लगते हैं, ओ ही शी और दे में बी एंग्री एट मी, वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं, राइट. देखो अभी मैं क्या बोलता हूं, लेकिन आप यदि सही सत्य में जानेंगे, शायद वो सो रहे होंगे. आमीन. शायद वो उनको कई दिनों से नींद नहीं मिला होगा, फ्री टाइम में वो सो रहे होंगे, इसीलिए आपका कॉल वो अटेंड नहीं कर रहे हैं. लेकिन हमने क्या कंक्लूड किया, हाँ वो बदला ले रहा है और वो मुझे धोखा दे रही है, और शी इज लाइक दैट. हम उनके परिवारों को हम कर्ज करने लगते हैं. हालेलुया, हालेलुया. अगले कुछ बातें, फैक्ट्स को जानना और ट्रूथ को जानना सेम नहीं है. आमीन. बिल्कुल अलग है. फैक्ट्स को हम कई चीजों से जान सकते हैं. हम न्यूज़पेपर पढ़े फैक्ट्स जान सकते हैं. आमीन. हम टीवी देखे फैक्ट्स जान सकते हैं. हम अपने दोस्तों से बात करें तो फैक्ट्स जान सकते हैं. हम रास्ते से चल के जाएं तो भी हम फैक्ट्स जान सकते हैं. लेकिन ट्रूथ ऐसे नहीं जान सकते. ट्रूथ को जानने के लिए हमें समय अलग करना होगा. हालेलुया. हमें उस ट्रूथ के सोर्स के साथ एक रिलेशनशिप बनाना होगा. Because truth cannot be just acknowledged, it had to be created within us. Amen. हमारे अंदर जन्म लेना जरूरी है. बिना जन्म लिए हम सच को नहीं जानेंगे और आजादी में नहीं आएंगे. कई बार हम सच को फैक्ट्स की तरह देखते हैं, लेकिन सच को हम फैक्ट्स की तरह नहीं देख सकते. हालेलुया. दूसरा, हम मनुष्यों पर ट्रस्ट जब करते हैं तो हम गलत कंक्लूजन में जाएंगे. ट्रस्ट इन गॉड, जैसे सैम में हम पढ़ते हैं, इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन गॉड देन टू पुट योर ट्रस्ट इन प्रिंसेस. हालेलुया. तीसरा, डोंट ट्रस्ट योर ओन अंडरस्टैंडिंग. अपने समझबूझ पर ट्रस्ट ना करो. हालेलुया. वो आपको गलत कंक्लूजन में ले जाएगा. लेकिन किसके समझबूझ में आप ट्रस्ट करो? परमेश्वर के समझबूझ में. हालेलुया. प्रेज गॉड. हालेलुया. Only trusting in God will bring us to the truth. हालेलुया. जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, वही चीज हमें सत्य तक पहुंचा सकती है. पांचवी बात, यदि हम अपना जीवन फैक्ट्स के ऊपर बेस करें तो हम कभी भी शांति में नहीं रहेंगे. हालेलुया. लेकिन यदि हम सत्य के ऊपर अपना जीवन हम बेस करेंगे, फाउंडेशंस वो होगा, तो हम शांति में रहेंगे. हालेलुया. और आखिरी, यदि हम परमेश्वर के सत्य वचनों के ऊपर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो हम हर अवस्था में हम शांति में रहेंगे. दुनिया इधर की उधर हो जाए, इकोनॉमी इधर की उधर हो जाए, लेकिन हमारे अंदर क्या है? शांति है. क्यों? क्योंकि हमने सत्य को पकड़ा. सत्य कौन है? यीशु मसीह है. और जब हमने सत्य को पकड़ा है, हम कभी भी नहीं हिलेंगे. हालेलुया. जब हमें ये एंड कर रहा हूं, ये 3 चीज आपके लिए है. प्रेज गॉड. आज के इस कोविड-19 के सीजन में, प्रेज गॉड, कई बार हम प्रोविजंस के ऊपर डाउट करने लगते हैं. क्यों? क्योंकि फैक्ट्स वही बताता है. क्या बताता है? अरे देखो इकोनॉमी पूरा डाउन है, हमको कल शायद राशन भी नहीं मिलेगा, हमारी नौकरी चली जाएगी. आमीन. हम बहुत चीजों में हम देखते हैं. हालेलुया. लेकिन फिलिप्पी 4:19 क्या कहता है? कि माय गॉड शैल मीट ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज ग्लोरियस रिचेस इन क्राइस्ट जीसस. हालेलुया. ये सत्य है. आमीन. हम फिलिप्पी 4:19 को पकड़े रादर देन इस दुनिया के फैक्ट्स को पकड़ने के द्वारा. प्रोविजन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज गॉड. हालेलुया. बिकॉज ही नेवर लीव्स अस नॉर forsake us. हिब्रू 13:5. परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता. यदि परमेश्वर जो सत्य है वो मेरे साथ है, तो मुझे कोई चीज की कमी नहीं होगी. दूसरा, हीलिंग. आमीन. हीलिंग फ्रॉम सिकनेस. प्रेज गॉड. कई बार हम फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देखते हैं. डॉक्टर का रिपोर्ट क्या कहता है,
राइट? डॉक्टर का रिपोर्ट बोलेगा अगले 1 महीने में तुम मर जाओगे, आमेन। लेकिन सत्य क्या है? भजन संगीता 91 का 16 वहां बोला है, विथ लॉन्ग लाइफ विल आई सेटिस्फाई हिम एंड शो हिम माई सैल्वेशन। आप यदि इस सत्य को पकड़े रहे तो फैक्ट्स क्या है, अपने आप चले जाएंगे, आमेन। लेकिन हम क्या करते हैं? फैक्ट्स को ज्यादा पकड़ते हैं और सत्य को हम सिर्फ अक्नॉलेज करते हैं। अक्नॉलेज करने से कुछ नहीं होगा। अब फैक्ट्स को अक्नॉलेज करो, लेकिन सत्य को पकड़ो, सत्य में बिलीव करो, जैसे जायरस ने पकड़ा। हालेलुया। जायरस ने कभी डाउट नहीं किया, आमेन। उसके बेटी मर गई बोला, हालेलुया, लेकिन फिर भी उसने डाउट नहीं किया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आखिरी जो है वो है पीस, हालेलुया, शांति, आमेन। कहीं भी शांति नहीं है। न्यूज़पेपर खोलते हैं, शांति नहीं है। टीवी देखते हैं, शांति। हाँ, इसीलिए मैंने अपने घर में तो पिछले 1 साल से न्यूज़पेपर बंद कर रखा है। टीवी भी आधा 1 घंटा से ज्यादा देखते ही नहीं है। क्यों? टीवी देखें तो आपको शांति नहीं मिलेगी, आमेन। Go into the word of God, amen. Peace will only come by truth. Peace will never come in by facts. यदि आपको लग रहा है ये फैक्ट जान के मैं अपने आप को सुरक्षित रखूंगा, मैं पीस में रहूंगा, आप गलत है मेरे दोस्त, आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती 11 के 28 में, कम टू मी ऑल यू आर weary and burdened and I will give you rest and peace. हालेलुया। ये है सत्य। लेकिन हम कहां जा रहे हैं? हम गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, हम अपना प्लान बना रहे हैं। मैं अपनी नौकरी कैसे बचाऊंगा? परमेश्वर के पास आओ। कम टू मी ऑल यू हु आर weary and burdened and he will give you rest. Who? Jesus. Jesus is the truth and he is giving us the promise, amen. और यूहन्ना 14 का 27 में, peace I leave with you, my peace I give you, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. ये किसका वचन है? यीशु मसीह का वचन है। ये सत्य है। Praise God. These 3, provision, healing, peace, hallelujah, is for all of us. Hallelujah. How can we receive this? If we focus on facts? No. If we focus on truth, which is the word of God, which is the promise of God, if we keep truth over facts, that is how we will be more closer to God. But what we do, we keep facts over the truth. Amen. So let us do a somersault today. When we are like this, let us turn back. Hallelujah. फैक्ट्स को आप नीचे रखो, लेकिन उसके ऊपर क्या रखो? परमेश्वर के सत्य वचनों को रखो। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हालेलुया। सो इफ यू आर ब्लेस्ड, कैन यू ऑल जस्ट lift your hands and say, yes, I receive this word. Hallelujah. I receive this word, oh Lord. I believe in your truth, oh Lord. Father, I thank you for this time, Lord Father. I pray over all your children. Yes, time has gone past, Lord Father, but thank you because your word has come, Lord Father. We will hold on to your truth, Lord Father. We will eat from the tree of life rather than from the tree of the knowledge of good and evil. The facts of the world is the tree of the knowledge of good and evil. There are good facts, there are bad facts, but I will eat of the tree of life. Who is life? Jesus, you are the life, and I will eat of you. I will eat your words daily. I will come to your feet. मैं तेरे चरणों में रहूंगा परमेश्वर। मैं तेरा सत्य वचनों को खाऊंगा परमेश्वर। I will keep your truth above all the facts, and I will go into freedom. Lord, I release your spirit of freedom into all the people who are hearing this now or who will hear this later through online mediums, Lord Father. Let the power of the truth which comes from the word of God, release us into a time of freedom. In Jesus' name I pray.